سر جی یہ لے سر سوال یہ ہے کہ وہ خوشی کا مقام ہے اور ان کے جھوٹ کے اوپر مبنی یہ بتائیں کہ اب پی ٹی آئی کو امیدیں ٹرمپ پہ سر پی ٹی آئی کو امیدیں وابستہ ہیں ٹرمپ کی مرداری کے بعد تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پی ٹی آئی والوں کے لیے میرا اور کوئی پیغام نہیں ہے. جمعے کا دن ہے, ہم تو کہہ رہے تھے کہ ان کو پیر کا دن مبارک ہو, لیکن میرے خیال میں ان کو جمعے کی مبارکباد دے ہی دیتے ہیں. آپ کو جمعہ مبارک ہو. شروع کریں ایک سیکنڈ اچھا ٹھیک ہے. اختیار صاحب کدھر ہیں؟ اختیار بھائی آ جا, اختیار بھائی آ جا, آ جائیے اندر. چار بھائی سے شروع کریں. گلزار صاحب آپ نے کیوں بتانا ہے؟ کیا لیں بھائی؟ ٹھیک ہے یہ کیا نہیں آپ کیا ٹھیک ہے. ایک منٹ بتانا بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس چیز سے اجاگر کرانا کہ یہ جو چور مچائے شور کی کہانی ہے کہ آج یہ پھر دوبارہ جس طرح ایکسپوز ہوئے, یہ عوام کے پیسوں سے, عوام کے خون سے اپنی جیبیں بھرتے رہے. آج جو عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ ہے یہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مفاد کے لیے اس ملک کو ہمیشہ پیچھے رکھا, اس کو پیچھے چھوڑا, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اس سارے ٹائم میں اپنی جیب بھرتے رہے. یہ 400 کنال میں محل میں رہنے والوں سے لوگ آج یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آج کے جو لوگ ہیں وہ ایک کنال پہ رہنے والے لوگ اپنے گھر کا خرچہ مشکل سے اٹھاتے ہیں. تو یہ 400 کنال میں رہنے والے یہ جس طرح کرپشن کر رہے تھے, اور آج آپ کے سامنے یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ اس چیز کی دلیل دیتا ہے کہ شواہد ہیں کہ کس طرح یہ اپنا جیب بھرتے رہے, کس طرح ایک سلائی مشین سے انہوں نے اربوں روپیہ بنایا, اور یہ جو ٹرسٹ بنایا اس کے یہ پیسے فرنٹ مین انہوں نے رکھا شہزاد اکبر کو, جو ان کے جیب بھرتے رہے. اور ان کی کرپشن کی جو کہانیاں ہیں وہ آپ کو کچھ بیرسٹر صاحب اور کچھ آپ کو اختیار ولی صاحب بتائیں گے اور لیگل فیکٹس کے اوپر یہ بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ تمام میڈیا کے جتنے بھی دوست آج اس پریسر میں ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت کرم کیا کہ آج انصاف ہوتا ہوا نظر آیا, اور انصاف کہ تمام تر تقاضوں کو پورا کیا گیا. قانون اور آئین کے مطابق تمام تقاضے انصاف کے, آئین کے, قانون کے پورے کیے گئے. عمران خان صاحب کو 14 سال سزا بما 10 لاکھ روپیہ جرمانہ, اور بشرا صاحبہ کو 7 سال سزا بما 5 لاکھ جرمانہ, اور اگر یہ جرمانہ ادا نہ کیا تو پھر 6 مہینے کی اضافی سزا ہے, جو کہ عین ممکن ہے جرمانہ, کیونکہ سورس آف انکم تو ان کا کوئی ہے نہیں, اور لٹو اور پھٹو کی سیاست انہوں نے پروان چڑھائی اور یہی سیاست کو فروغ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 6 مہینے اور ایڈ کر لیں دونوں کی طرف سے. آج پی ٹی آئی کے جتنے سپورٹرز ہیں یا لیڈرشپ ہے ان کو سب سے پہلے پیغام ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے.
9 मई के भी फैसले आने हैं, 9 मई के भी केसेस अपने लॉजिकल कंक्लूजन को पहुंचेंगे। जो अजाब बरपा इस कौम पे किया, इस मुल्क के साथ जो नाइंसाफी की, जो इस मुल्क के साथ ज्यादतियां की, उनका एक एक करके अजाला इंशाल्लाह ये पूरी कौम हिसाब भी करेगी और एहतसाब भी करेगी। आज पहली दफा ये सामने नजर आया आप सबको कि जिस तरह एक झूठ, फरेब और जिस तरह एक मजहबी टच दे के सियासत को फरोग दिया गया और हर बात में, हर चीज में ये मजहब को ले आते हैं, तो आज जो अलकादिर यूनिवर्सिटी का एक झूठा बयानिया बनाया गया कि वहां पे सीरत नबी पढ़ाई जाती है और शायद कोई दीनी तालीम दी जाती है, अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी या अलकादिर यूनिवर्सिटी को आज अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत के हवाले किया गया है और हुकूमत इंशाअल्लाह उसको अपनी तहवील में भी लेगी, क्योंकि ये एक शैम ट्रस्ट था, इनकी ना कोई सोर्स ऑफ इनकम थी और जाती मफाद के लिए मिस यूज ऑफ अथॉरिटी को करते हुए इस्तेमाल और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बरूए कार लाते हुए काबीना से बंद लिफाफों में इन्होंने जो अप्रूवल्स लिए वो आपके सामने, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसाफ किया है और अपने कैफरे किरदार तक इन दोनों कैरेक्टर्स को पहुंचाया। और मैं ये भी यहाँ पे कहना मकसूद होगा, क्योंकि इनकी पार्टी की तमाम तर जितनी भी ग्रुपिंग्स हैं उनकी ख्वाहिश थी कि इन दोनों को सजा हो, और ये उनकी ख्वाहिश और दुआओं के मुताबिक उनकी दुआओं को भी अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है वो कबूल किया है और सुन लिया है। क्योंकि अभी अलीमा साहिबा ने भी ये बात की थी कि मेरी ख्वाहिश है और दुआ है कि इमरान खान साहब को सजा हो और बुशरा बीबी को सजा हो, और इसी तरह उनको कानून के तमाम तर तकाज़ों को पूरा करते हुए उनको सजा हुई। जो इररिफ्यूटेबल एविडेंस था, जो आइन और कानून के मुताबिक एविडेंस था, जो शवाहिद थे, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था या दीगर शवाहिद थे, उनमें से किसी एक पीस ऑफ एविडेंस पे ये उसको डिसप्रूव नहीं कर सके। प्रोसिक्यूशन का जो तमाम तर केस था उसके ऊपर एक जरा भी जो इनकी तरफ से उसको काउंटर करना था या उसके अगेंस्ट कोई चीज प्रूव करनी थी वो ये नहीं कर सके, अपनी बेगुनाही को ये साबित नहीं कर सके। प्रोसिक्यूशन अपना केस मुकम्मल तौर पे प्रूव उसने किया और प्रूव करने के साथ आइन और कानून के मुताबिक इनको 14 साल और 7 साल की जो सजा सुनवाई गई है, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को आज मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली साहब जो है इस पे कुछ रोशनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सबसे तो पहले मैंने अपने साथी को बोला कि थोड़ी सी नमक और इलायची पीछे वालों को भिजवा दें ताकि उनके गले ताज़ा हो जाएं। गले इनके बैठ गए हैं। और मेरी कौम को मुबारक हो, पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। आज साबित हो गया है कि चोरी के माल की कोई रसीद नहीं होती, चोरी के माल की कोई रसीद नहीं होती, करप्शन के माल की कोई उसका वो सबूत नहीं होता। जो पैसे लंदन से पाकिस्तान आए थे वो पाकिस्तानी कौम की मिल्कियत थे और पाकिस्तानी अवाम की मिल्कियत थे, और वो पैसे उठाकर मलिक रियाज के खाते में डाल दिए। मलिक रियाज से फिर सैकड़ों कनाल अराजी रिश्वत के तौर पर ली गई और फिर बड़ी कीमती अंगूठियां, वो पता नहीं कितने कैरात की थी, 6 कैरात की, कम तो कोई लेनी भी नहीं थी। डी डमास और डी बियर्स का माल ये बटोरने वाले जो दूसरों को चोर कहते थे, आज खुद इनको चोरी के सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। मैं कहता हूं आज मुबारकबाद का दिन है मुस्लिम लीगी कारकुनों को भी और मियां नवाज शरीफ जिन्होंने कहा था कि मैं अपने फैसले अल्लाह पर छोड़ता हूं। आज वक्त उनके साथ इंसाफ कर रहा है। इमरान खान, तुम देख लो मकाफात अमल क्या होता है। आज तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है ये मकाफात अमल है। और शहबाज शरीफ को साफ पानी में बुलाकर गंदे पानी में बिठा देते थे, आज तुम्हारी अपनी हैसियत क्या है? तुम कहां खड़े हो?
पाकिस्तान की तारीख ये लिखी जा रही है कि जो बंदा करप्शन के खिलाफ सबसे बड़ा झंडा उठाकर चलता होता था और बोलते हुए उसका गला फट जाता था, वो खुद चोर निकला। और साकिब निसार, तुम्हें भी मुबारक हो, तुम्हारी नस्लों को भी मुबारक हो, जब तुमने एक चोर उचक्के डाकू को सादिक और अमीन का तुमने खिताब दिया था। साकिब निसार, आपका फैसला आज आपका मुंह चिढ़ा रहा होगा कि आपने एक चोर को, एक डाकू को सादिक और अमीन का खिताब दिया था। वो बंदा जिसने पाकिस्तान की असास के साथ खिलवाड़ किया, वो बंदा जो सुबह शाम झूठ बोलता था, उसको सादिक और अमीन कहते थे। उमर अता बंदियाल, आज तुम्हारे फैसले भी तुम्हारा मुंह चिढ़ा रहे होंगे। अगर कहीं जमीर जिंदा हो, कभी लॉ पर फैसले किए होते तो आज तुम्हें भी तुम्हारा जमीर सोने नहीं देगा। लेकिन अगर फैसले मदर इन लॉ की सिफारिश और उसके जोर जबरदस्ती पर होते हैं तो फिर आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो अभी पहला एपिसोड है, इसके बाद तो अभी 9 मई के चलने वाला है। और कहते होते थे कि जी हमारा लीडर बड़ा ईमानदार है, तो आज मैं कौमी यूथ के तमाम उन कारकुनों को जो इमरान को फॉलो करते हैं, मैंने तो पहले दिन से ही कहा था कि तुम्हारे कैदी का नंबर 800 चोर है, और आज साबित हो गया। आज अदालत ने और कानून ने साबित कर दिया, तमाम दलाइल और सबूत के साथ साबित हुआ कि वो 804 नहीं, वो 800 चोर ही था। वली साहब, ये बताएं कि जब हम ज़्यादातर मौजूद थे तो इमरान खान कुछ रिस्पेक्ट करे थे, कुछ डिफरेंट, लेकिन जब फैसला सुनाया गया उसके बाद एकदम उन्होंने ये बात की कि जी याहिया दौर में जो डिक्टेटरशिप जो थी, अब भी वही डिक्टेटरशिप है और तमाम तर मामला बेसिकली वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर्मी चीफ को टारगेट कर रहे थे। लेकिन ये बताएं कि एक तरफ ये मामलात है, इमरान खान ये बात कर रहा है, दूसरी तरफ इनके लीडरान जाके आर्मी चीफ से ही मुलाकात कर रहे हैं। आपको क्या नजर आ रहा है इनकी मुज़ाकरात और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मुलाकातों का, और इमरान खान के इंतजामात से आपको क्या दिखाई दे रहा है, फोर्सी क्या कहें? देखिए, सबसे पहले क्या साहब, ये तो पता है कि आर्मी चीफ से मुलाकात में मुझे इनके बैरिस्टर गोहर पर बड़ा तरस भी आया है, मुझे बड़ा रहम आया उस पर। वो बेचारा पहले कहते रहा कि हमारी कोई मुलाकात हुई नहीं है, फिर बाद में उसकी तस्दीक उसके लीडर ने कर दी। झूठे तो ये सब हैं, चाहे जितने गोरे कपड़े पहन ले, चिट्टे कपड़े पहन ले, ये झूठे लोग हैं। और उम्मीद है कि वो सवाल जो ये मीडिया पे करते होते हैं, इनमें इतने गट्स नहीं है कि ये आर्मी चीफ के सामने बैठ के वहां से वो सवाल करते हैं। पहले ये कहते होते थे कि फलां डिग्गी में गया है, हम आज पूछते हैं कि आप डिग्गी में बैठकर गए थे या पॉलिश की डिबिया में बैठकर गए थे, हमारा भी सवाल है। और जहां तक इनकी बात है कि इनके साथ पूरे पाकिस्तान में बात करने वाला कौन रह गया है, ले दे के एक मौलाना साहब थे, उनको भी इन्होंने नाला कर दिया है। अब इनके पास 7-8 महीने ये तरले करते रहे बूट चाटने की और पॉलिश करने की कि हमें मौका दें दोबारा। इमरान खान किसको याया खान कहता है? इमरान खान अपने दौर का सबसे बड़ा याया खान है। इमरान खान अपने दौर का सबसे बड़ा जो अपोजिशन लीडर है उसका दादा है अयूब खान, ये उससे बड़ा मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रह चुका है। तो मेरे पीटीआई को तो बस जी आगे दे सर जी, ये लेके सर सवाल ये है कि वो खुशी का मुकाम है और इनके झूठ के ऊपर मबनी। ये बताएं कि अब पीटीआई को उम्मीदें हैं ट्रंप पे, सर पीटीआई को उम्मीदें वाबस्ता है ट्रंप की ईमानदारी के बाद, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? पीटीआई वालों के लिए मेरा और कोई पैगाम नहीं है। जुम्मे का दिन है, हम तो कह रहे थे कि उनको पीर का दिन मुबारक हो, लेकिन मेरे ख्याल में उनको जुम्मे की मुबारकबाद दे ही देते हैं। आपको जुम्मा मुबारक हो।